Hello students, I hope you all are fine. Welcome back to my channel. So today we are going to start with sectors of Indian economy. I hope you are very excited for this lecture and how the economy works. We will start in this and make sure that side by side make your short notes and no confusion will be there after that. So stay tuned. Let's start. So decoding the Indian economy, a structural blueprint of sectors, employment, and growth. In this chapter, basically, we are going to deal with three types of things. First of all, we will study about the sectors. Like three sectors are there: primary sector, secondary sector, tertiary sector. How our economy works, how the GDP play role in economy, and how the sectors are divided into two parts like organized sector and unorganized sector. दो तरीके के और सेक्टर्स होंगे, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर्स. बेसिकली अराउंड दीज थिंग्स आवर चैप्टर रिवॉल्व्स. ओके, सो I hope you don't have any kind of doubt in the introductory part what I am saying. Okay, so see the video very carefully. There are three lenses view of economy. First of all, there is a nature of activity in which we deal with the primary, secondary, and tertiary, three types of sectors. Okay. Next, we will talk about the employment conditions. What kind of employment conditions can be? How are people working, organized and unorganized? Sector ownership. Who owns the assets, public and private? Both we will study. Okay. First of all, this is a mind map which we have to study in this chapter. आपको पता है कोई भी चीज को शुरू करने से पहले अगर हमें ये पता लग जाए कि हमने करना क्या है, what we are going to study, then step by step everything we can be achieving very easily. Okay. Any single job in India can be analyzed through all three of these lenses simultaneously. Okay. Next, classification by economic activity. So basically there are three sectors: primary sector, secondary sector, tertiary sector. Activities which are undertaken by directly using natural resources like the raw materials, we can say the forms the base for all other products. Okay. What is a secondary sector? It is also known as industrial sector. Natural products जो जिसको हम चेंज करते हैं दूसरी फॉर्म्स में, they are manufactured in the industry. Okay. Then we have the activities that do not produce goods but aid or support the production process, like we can say transportation, banking, etc. Primary sector have the key concept that it forms the base. Primary sector is the base. What is the key concept of secondary sector? It transforms. What does it do? It transforms the products into the finishing goods. And what is the role of tertiary sector, which we can also say that it is a service sector? It's mainly transport the products. Okay. These three sectors are interdependent. Interdependent means एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. Okay. Done. Any doubt? Three types of sectors are clear to you? Next. Sectors of Indian economy. People who are engaged in various economic activities produces, some activities produces goods while others provide services. These activities happen around us every time. Okay. To understand them better, we group them using certain important criteria. These groups are called sectors, which we have usually we are discussing about that, है ना? Primary, secondary, tertiary. Other name of primary sector is agriculture sector. Secondary sector is also known as industrial sector. Tertiary sector is also known as service sector because it provides service. Why secondary sector is known as industrial sector? Because it produces manufactured goods, which is manufactured in factories, industries, workshops, etc. Okay, done. See this.
Making bricks, this is a primary activity. Spinning yarn, this is its secondary. And selling the clothes, that is a tertiary. Okay. Transport and delivery, that is also a tertiary. This is the description. Activities which are undertaken by natural resources. For example, cultivation of cotton, it depends mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine, climate. Products जैसे cotton हो गया, timber, milk, they all are the natural products. They all are the parts of primary sector. These all are the examples. Secondary sector, which is the next step after the primary sector. For example, cotton fiber to spin yarn and weave cloth, converting earth into bricks, building houses and factories. This sector is known as secondary sector, associated with the industries. Tertiary sector is associated basically with transport, storage, communication, banking, trade, healthcare, IT services, etc. Done. There are some examples. Education is a tertiary sector, service sector, healthcare, doctors are serving there, banking, bank officers are serving for you, IT and internet services. All the employees who are in IT and internet services, they are the service providers for you. Communication, all the telecommunication companies, administration and accounting. Okay, these all are the examples of tertiary sector. They all are the services which are essential. ये इतनी जरूरी है for the smooth functioning of economy and also have a very important in recent times. कुछ recent सालों में पाया गया कि इसके बिना our economy can't progress. Okay. Now next, the chain of interdependence. Initially, I was talking about this in the beginning of the slides. I was just about to discuss about the chain of independence. What is that? Primary sector. Farmer cultivates the cotton, and in secondary sector, what is happening over there? Textile mill spins yarn and weave clothes. Okay. In tertiary, trucks transport the finished cloth to retail shops. 3 steps में काम हो रहा है. प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ? फार्मर ने कॉटन कल्टीवेट किया. सेकेंडरी में टेक्सटाइल मिल्स स्पिन्स yarn and weaves cloth. टर्शरी में क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन. टर्शरी में क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन. डन. इट्स वेरी इजी. अगर आप उसको देखोगे कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट, उसको एक इमेजिनेशन करके समझो उसको, ठीक है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. रिस्क क्या रहता है? आप देखो प्राइमरी सेक्टर में अगर कंपनीज रिफ्यूज कर दे इंडियन कॉटन को, फार्मर्स गो बैंकरप्ट. अब देखो कईयों ने लोन लिया होता है ना, किसी ने कर्जा लेके जैसे अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ भी कॉटन वगैरह जो भी वो कर रहा है फार्मर, उसके पैसे डूब जाएंगे. ही विल नॉट बी एबल टू पे हिज installments of loans which he had taken for his earning, for fulfilling his needs. Okay. अगर फार्मर्स प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो फैक्ट्रीज जो मिल्स होंगी वो शट डाउन, वो बंद हो जाएंगी. देखो ना, सेकेंडरी प्राइमरी पे डिपेंड करता है, प्राइमरी सेकेंडरी पे डिपेंड करता है. प्राइमरी अगर अपना कॉटन उसको बेचने जाए और आगे से वो कंपनी बोल दे नहीं हम आपने आपका कॉटन नहीं लेना, दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी सारे उसको मना कर दें, तो एक दूसरे की डिपेंडेंस आपको पता लगी ना इस पे है. अब देखो उसके बाद अगर ट्रांसपोर्टर्स जो है स्ट्राइक कर दे, जैसे कई बार होता है ना, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, स्ट्राइक चल गई, जैसे बसेस क्या हो गया, कुछ हो गया है ना, तो इससे क्या होएगा, जो खास करके अर्बन एरियाज होंगे वहां पर शॉर्टेजेस आ जाएंगी चीजों की, उससे लोगों को बहुत इफेक्ट पड़ने वाला उसकी वजह से. तो दीज ऑल 3 सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट. द चेन ऑफ इंटरडिपेंडेंस. गॉट इट? गॉट द आइडिया? ओके ओके, डन. Sectors do not operate in a vacuum. A disruption in one immediately halts the other. समझ आई? मतलब एक दूसरे का इफेक्ट पड़ता है. All 3 sectors are equally equivalent. All 3 sectors are equivalent. Not I can say exactly. All 3 sectors are equally important. I can say. Done? क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट करते हैं. मेजरिंग द मशीन कैलकुलेटिंग जीडीपी. हाँ, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है. आप देखो, अब देखो, दिस इज अ विमेन, दिस इज अ वुमन शोन हेयर, एंड व्हाट इज शी सेइंग, बट आई शुड बी पेड द फुल वैल्यू ऑफ द वीट दैट आई प्रोड्यूस. अब देखो, आपको पता है इंडियन फार्मर्स दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर वेजेस विच दे हैव टू, है ना, जो उनको मिलना चाहिए. अब देखो ये विमेन का भी यही रोल है, ये जो वुमन है यहाँ पर,
अब एक फार्मर है, किसान ने अपनी गेहूं को बेचा ₹20 पर केजी, इंटरमीडिएट है ये। फिर उसके बाद क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में मतलब उसको ग्राइंडिंग हुई, आटा मतलब जो भी फ्लोर वगैरह बना उसको बेचा गया 25 पर केजी में, है ना। गेहूं उसने लिया 20, तो ₹5 का यहाँ पर ये पर केजी पे क्या कर रहा है, प्रॉफिट। कंपनी ने उसमें शुगर ऑयल और कितना कुछ ऐड करके ₹80 का कर लिया उसको, है ना। फाइनल गुड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो अब जीडीपी क्या है, टू कैलकुलेट जीडीपी वी ओनली काउंट द फाइनल गुड ₹80, तो उसमें इसी का ही इंक्लूजन होगा। ये दोनों को नहीं देखेंगे, वो फाइनल गुड को ही देखेंगे जब जीडीपी का उन्होंने पीछे से हिसाब देखना है। वाई नॉट एड देम ऑल, अब इसका देखो रीजन क्या है। द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड ₹80 ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड व्हीट, समझ आया। उनको सेपरेटली ऐड करने से क्या होएगा, काउंटिंग डबल हो जाएगी। तो अवॉइडिंग दैट डबल काउंटिंग, GDP, what is the actual way to calculate GDP? Only we take the final value. Okay, only we are taking the final value, which is the manufactured product, that is a biscuit which is selling over there. Done. What is the full form of GDP? Yes, gross domestic product. Done. चले आगे। द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ सेक्टर्स, कैसे इसकी एवोल्यूशन हो रही है, मतलब कैसे सेक्टर्स डेवलप कर रहे हैं, कहां से, इनका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। मेनली इट इज रिलेटेड विद एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो वैसे तो लगता है कि प्राइमरी सेक्टर इज द लोअर सेक्टर, हमें लगता है कि मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। नेचुरल प्रोडक्ट जो है वो हमेशा डोमिनेट करता है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल शिफ्ट, जिसमें हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं। नए नए मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स हमारे आ रहे हैं, फैक्ट्रीज मर्ज, है ना। पीपल माइग्रेट, लोग माइग्रेट कर रहे हैं फार्म से फैक्ट्री में। सेकेंडरी बिकम्स डोमिनेंट, अब यहां पर सेकेंडरी डोमिनेंट हो गया, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। अब आगे देखो सर्विस इकोनॉमी। कहते हैं लास्ट पास्ट सेंचुरी में देखा गया है, लास्ट 100 सालों में, फर्दर शिफ्ट इन डेवलप्ड नेशंस द टर्शरी सेक्टर बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर टर्शरी सेक्टर, जिसमें सबसे ज्यादा लोग वर्किंग हैं। ओके, तो आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर में, विच इज द सेक्टर हैविंग द मोस्ट एम्प्लॉयड पर्संस ओवर देयर, दैट इज द सर्विस सेक्टर। डन। आगे देखो, ये थोड़ा सा पिक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट किया है, देखो जरा। व्हाट इज जीडीपी, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ ईयर, ये हमने अभी पढ़ा है ना। जीडीपी को मेजर कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री अलोंग विद द वेरियस डिपार्टमेंट्स। दे कलेक्ट डाटा एंड जीडीपी को वो एस्टिमेट करते हैं, एक एस्टिमेट दे देते हैं। ओके। हिस्टोरिकल चेंजेस मैंने अभी बताया, फार्मिंग इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्रीज उसको ग्रो करने में हेल्प करती है, एंड सर्विस सेक्टर बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मेनी कंट्रीज, ठीक है। बाकी कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन है इनके साथ साथ, ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी, पुलिस, एटसेट्रा। ये दोनों के दोनों जो है, ये प्राइमरी और सर्विस सेक्टर दोनों में ही मोस्टली हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये देखो जीवीए एंड जीडीपी, ये क्या है। जीवीए एंड जीडीपी, देखो जीवीए क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ग्रोस वैल्यू एडेड एट जीडीपी, मैंने अभी पीछे भी बताया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस। पिछले वाले काउंट नहीं करने कि मतलब फार्मर ने उसको इतने में बेचा, सर्विस जब सेकेंडरी सेक्टर में पहुंचा तो इतने में उसने ऐड करके इतने में आगे बेचा, पिछली वैल्यूज आप ऐड अप नहीं करोगे। मैंने अभी आपको पहले बताया कि फाइनल में क्या होएगा, टर्सरी में जो आपको आया ये फाइनल प्राइस ही है, पिछला आपने ऐड नहीं करना, क्या अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, ठीक है। गुड। जीवीए हेल्प्स मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर। जीवीए क्या करता है, हर एक सेक्टर में कंट्रीब्यूशन को मेजर करता है, एंड जीडीपी टेल्स अस द टोटल साइज ऑफ इकोनॉमी। इंपॉर्टेंट है ये भी। डेवलप्ड कंट्रीज में देखो क्या है,
शिफ्ट ओवर टाइम, मोर इन प्राइमरी, मोर इन सेकेंडरी, मोर इन टर्शरी। और डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा प्राइमरी में है और सेकेंडरी ग्रोइंग सेक्टर है, टर्शरी इज ऑल्सो ग्रोइंग। ओवर टाइम फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी द शिफ्ट शोज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। डन। ये एक यहां पर एक सिचुएशन है, इसको ट्राई करना। दिस इज द होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। चलें आगे। वेट अ मिनट क्लास। अच्छा, आपको दिख, ओके ओके ओके, लग गया पता। चलो, आगे से आई विल टेक केयर ऑफ दैट। ओके ओके। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही थी, आप बेटा पहले बताते। अब ठीक है। इतना सा विजिबल, हाँ अब ठीक है, चलो। जहां पर मुझे लगे ना, मैं वहां पर अपने आप ही कर लूंगा, ठीक है। डोंट वरी। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड। ये हो गया था, हाँ जी, ये देखो। ये भी सेम ही है भाई। इस पे ये हो गया हमारा डिस्कस। अब देखो ये वाला इंपॉर्टेंट। देखो कितना शेयर है जीवीए, मैंने अभी जीवीए बताया क्या है। हम्म। कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है वो, देखो। यहां पर देखो 1977 टू 78 वाला डाटा और 2017 टू रिवर्स है। देखो यहाँ पर टर्शरी, देखो यहाँ पर कम है। एंड यहाँ पर टर्शरी इज द मोस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर, है ना। यहाँ पर टर्शरी देखो और यहाँ पर प्राइमरी देखो। यहाँ पर प्राइमरी देखो और यहाँ पर टर्शरी, कंपेयर कर पा रहे हो? आर यू एबल टू कंपेयर देयर? है ना। द सर्विस सेक्टर हैज रिप्लेस्ड द प्राइमरी सेक्टर एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। सर्विस सेक्टर ने प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस करते हुए अपने आप को एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इंडिया में अपनी जगह बना ली इसने, है ना। अब देखो एम्प्लॉयमेंट में क्या शेयर है, आप देखो एम्प्लॉयमेंट में शेयर देखो। पहले प्राइमरी में देखो, पहले प्राइमरी में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट शेयर है। सिमिलर शिफ्ट हैज नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट, प्राइमरी सेक्टर रिमेन्स द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट, अभी भी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ही है। कुछ खास इसमें नहीं है, मतलब देखो। इसको देख के आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, ये जो डेटा है, जो डेटा के अकॉर्डिंग जो एनालिसिस हुआ है, उसके बेसिस के ऊपर देखो क्या है। टर्शरी सेक्टर has the most employment rate, sorry, primary sector has the most employment rate, right? Primary sector remains the largest employer, है ना। अब ये देखो, इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाली। इसके ऊपर
हम्म। आर यू एबल टू सी? हाँ जी। तो ये देखो, द ग्रोथ ऑफ बेसिक सर्विसेज, विद द ग्रोथ ऑफ बेसिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, डिमांड फॉर सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड ये सब इंक्रीज हो रहा है। राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, देखो जैसे जैसे इनकम राइज करती है, लोगों की डिमांड भी राइज करती है। जैसे ईटिंग आउट, उनका खाना पीना इंप्रूव हो जाता है, और टूरिज्म, वो घूमने फिरने जाते हैं, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल्स, ट्रेनिंग। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, उनके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, उनके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। आगे देखो, न्यू टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज हैव बिकम इसेंशियल। ये भी जरूरी हो गया आज के दिन में, और प्रोडक्शन भी एक तरह से रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट इन सर्विसेज, देखो सर्विस सेक्टर जो है वो कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयड कर रहा है ना, उनको मतलब जॉब प्रोवाइड कर रहा है। बट कहते हैं मोस्ट आर लो स्किल्ड विद लो इनकम एंड फ्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, है ना। लो इनकम, लो स्किल्ड, और अपॉर्चुनिटीज भी कम है। अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं दोगे, हाउ द पर्सन इज एबल टू फुलफिल हिज टैलेंट, हाउ द पर्सन एबल्स टू शो हिज टैलेंट, है ना। अपॉर्चुनिटीज भी तो मिलेंगी ना, ठीक है। तो तभी मिलेंगी जब वो प्रोवाइड करेंगे। ये शो क्या कर रहा है, देखो यहां पर ये क्या शो कर रहा है, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीवीए, गुड्स वैल्यूज एडिड, देखो क्या है। ये भी 2 इयर्स का है, 1977 और 2017 अगर कंपेयर करें, यहां पर टर्शरी सेक्टर में राइज है, शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इज ग्रेटेस्ट हेयर, है ना। और एम्प्लॉयमेंट शेयर देखो, एम्प्लॉयमेंट शेयर में टर्शरी नो डाउट इंक्रीज हुआ है, बट प्राइमरी अभी भी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, लार्जेस्ट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयर, है ना। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होएगी, उससे क्या होएगा, इट शिफ्टेड टू द टर्शरी सेक्टर, बट एम्प्लॉयमेंट हैज नॉट शिफ्टेड। देखो ध्यान से क्या है, प्रोडक्शन कहते सबसे ज्यादा आज हो गई है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में टर्शरी सेक्टर सबसे आगे है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग सबसे बड़ा सेक्टर प्राइमरी आज भी है और कल भी था। आगे आके क्या होगा, वो आगे पता लगेगा। वैसे तो प्राइमरी ही रहेगा, प्राइमरी के ऊपर ही सारा डिपेंड करता है, कि प्राइमरी में ही एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी तो आगे जाके जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है उसमें इफेक्ट पड़ सकता है। आगे जैसे टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ये कुछ आ गया तो आगे हो सकता है कि देयर मस्ट बी सम मोर परसेंटेज इन टर्शरी सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट रेट, बट ड्यू टू द टेक्नोलॉजी एंड दैट वी कांट से एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। बट आज का जो इसने डेटा दिखाया है उसमें टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट रेट आज भी कम है, प्राइमरी का सबसे ज्यादा है, ठीक है। एंड प्राइमरी का पहले भी ज्यादा था, आज भी ज्यादा है। और प्रोडक्शन में प्राइमरी पहले ज्यादा था, अब टर्शरी सबसे ज्यादा है, ठीक है। डन। प्राइमरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट सेक्टर इन जीवीए, पेपर में आ सकता है। टर्शरी सेक्टर कहते हैं उसका शेयर इंक्रीज तो हुआ है, शेयर इंक्रीज तो हुआ है, और सबसे ज्यादा आज उसका सबसे ज्यादा शेयर है टर्शरी सेक्टर का। और अगर प्रोडक्शन की बात करें, टर्शरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। अब नो सिमिलर शिफ्ट इन एम्प्लॉयमेंट, ये क्यों, नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स, वही बताया ना मैंने। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में उनको चाहिए चाहिए एम्प्लॉयमेंट, सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर डिड नॉट हैपन इन एम्प्लॉयमेंट, सेम तरीके का शिफ्ट नहीं आया उसमें। डन। जो इसमें ग्राफ 2 है आपका, वो क्या शो करता है, ग्राफ 2 वो क्या शो करता है, परसेंटेज ऑफ शेयर की, कितने लोग एम्प्लॉय हैं वो मैंने बता दिया आपको। डन, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। इस स्लाइड में हमने क्या क्या बेसिकली देखा, कि क्या उसके सेक्टर्स का इफेक्ट, जैसे ग्रोथ ऑफ बेसिक सर्विसेज बताया, बेसिक चीजें जो भी डिमांड में, राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड, जैसे जैसे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा उनके खर्चे वगैरह बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। न्यू टेक्नोलॉजी सर्विसेज आ रही है, उसके बाद इंप्लॉयमेंट इन सर्विसेज बढ़ रही है, ठीक है। डन। आगे देखो, हिडन क्राइसिस डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अब ये देखो ये क्या चीज है, देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन where people are apparently working but are made to work less than their potential because it is hidden, it is also called disguised employment। अब क्या है, कहते लोग यहाँ पर काम तो करते हैं, लेकिन ये उतना काम करते हैं जैसे, जैसे सपोज करो, यहाँ एग्जांपल दी है आपको, एग्जांपल से समझो। लक्ष्मी की फैमिली, लक्ष्मीज फैमिली ऑफ 5 वर्क्स ऑन अ 2 हेक्टेयर लैंड, 5 जने हैं, वो एक 2 हेक्टेयर अनइरिगेटेड प्लॉट में काम करते हैं, और वहां पर ज्वार और अरहर ग्रो करवाते हैं, है ना। अब इल्यूजन वर्सेस रियलिटी देखो क्या है,
हर कोई वहां पर काम कर रहा है, कोई भी फ्री नहीं है। However, the labor effort is divided. Each is working beneath their potential. अब ज्यादा लोग एक लैंड पे काम करें तो काम जल्दी होगा, है ना? जल्दी होगा ना? तो ये एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की एग्जांपल दी हुई है उसने। ठीक है बेटा, पता लग गया। इसमें यही बताया, जैसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में जैसे अगर तीन बंदे भी काम कर रहे हैं तब भी टोटल उनका शेयर उतना ही रहेगा। जैसे अगर उन्होंने, जैसे उनको 1500 है, तो 1500 पहले तीन लोग बांट रहे थे, 500 500, 500 500। अब वो पांच लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो ओनर है उसने उनको 1500 ही देना। 1500 पांच लोगों में डिवाइड होगा। ये देखो यहां से समझते हैं। जैसे लैंड पे पहले 3 पीपल आर वर्किंग, ठीक है, उनको 1500 आपस में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हर एक के हिस्से कितना आया? 500, क्योंकि जैसे वीट उगा रहे हैं, जैसे 5 kg है जितना भी है, 2 हेक्टेयर लैंड पे जो भी वो 500 500 डिवाइड हो गया। जब यहाँ पर पांच लोग काम करेंगे, एक ही फैमिली के पांच लोग हैं, वो तो चलो एग्जाम्पल दी है इसने, 1500 ही ओनर ने कहते मैंने देने, जितने मर्जी बंदे लगो। तो यहाँ पर क्या हो गया? अगर ज्यादा जने काम करेंगे तो टाइम जल्दी काम खत्म हो जाएगा और 300 300 डिवाइड होएगा उनमें। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? जितने लोग एक्चुअल में काम करने के लिए चाहिए उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उससे ओनर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट इसी को ही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, कि वो उसके अलावा कुछ और काम भी कर सकते थे। क्लियर हो रहा है आपको? डन। अगर बेसिकली हम डेफिनेशन देखें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, इफ यू गेट इन पेपर इन योर एग्जाम, क्या लिख के आओगे उसमें आप फिर? बताओ क्या लिख सकते हो फिर? जो आपने अभी समझा उसके बेस पे डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? क्या समझ के आया आपको कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है क्या? हिडन एम्प्लॉयमेंट का एक तरह की क्या है ये? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। पीपल लुक फुली एम्प्लॉयड, ऐसे तो लगता है कि लोग एम्प्लॉयड हैं, बट देयर वर्कफोर्स कंट्रीब्यूशन इज एक्चुअली जीरो। क्योंकि जितने तीन लोग काम कर रहे हैं उतना ही एफर्ट पांच लोग भी दे रहे हैं, काम तो हो ही जाना फिर भी, अगर वो दो एक्स्ट्रा ना लगेंगे तो। ठीक है। ये चीज कॉमन देखने को मिलती है, जैसे रिटेल शॉप्स होगी, है ना, रोड साइड कुछ ईटेबल्स, कुछ भी मतलब स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह आप देखते हो, तो वो एग्जांपल हम कंटेन कर सकते हैं। जैसे क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स इंक्रीज कर रही है लेकिन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रह रही है। अगर प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेगी फिर उनको कुछ फायदा होगा। इसी को ही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, कि जहां पर ना तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, ना ओनर अपनी तरफ से ओवरऑल कोई मनी में इंक्रीज कर रहा है। मतलब दो अगर एक्स्ट्रा जने आ रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी को ही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जिसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल देते हैं हम। क्लियर हुआ आपको? डन है ना? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आवाज नहीं आ रही मेरी तरफ से? क्लियर है? एक मिनट। चलो अब ये देखो जरा। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों होता है? जैसे इंडस्ट्रियल आउटपुट है 9+ टाइम्स, सर्विस सेक्टर 14 टाइम्स, एम्प्लॉयमेंट 3 टाइम्स, एम्प्लॉयमेंट इन सर्विसेज 5 टाइम्स। अब देखो, आधे से ज्यादा वर्कर्स जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। और ये 1/6 पार्ट ऑफ जीवीए में कंट्रीब्यूट करता है, प्रोड्यूस करता है। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयड देखो कौन कौन से हैं ये? मार्जिनल फार्मर्स, है ना, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, रूरल यूथ विद फ्यू स्किल्स, होम बेस्ड वर्कर्स, पीपल इन लो पेइंग इनफॉर्मल जॉब्स एक्सेट्रा। इस पे मैं आता हूं, ये जो मनरेगा। अब लक्ष्मी की फैमिली के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, स्मॉल फार्म, 2 हेक्टेयर अनइरिगेटेड लैंड, एक्स्ट्रा पीपल काम कर रहे हैं, नो एक्स्ट्रा वर्क, है ना। एक्स्ट्रा वर्क तो की है नहीं, फिर भी एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं, लेबर एफर्ट डिवाइड हो गया। रिजल्ट क्या आ रहा है? दे वर्क होल डे बट अर्न वेरी लिटल, इनकम वेरी लो। परिवार में तो फिर भी उतना ही पैसा आ रहा है ना जितना पहले आ रहा था। क्लियर? हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट? इरिगेशन देखो, क्रेडिट, लो इंटरेस्ट लोन्स फॉर फार्मर्स, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, बेटर रोड्स आएंगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, है ना, इंप्रूव होएगी, बाय एंड सेल फैसिलिटीज। ये चीज क्या करेगी? फार्मर्स को बेटर प्राइसेस पे सेल करने के लिए इंप्रूव करेगा। डाइवर्सिफाई फार्मिंग, मतलब कि आप वैरायटी ऑफ
पल्सेस, वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स आप क्या करो, ग्रो करो। ठीक है। और क्या एरियाज आ सकते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट के? अर्बन इनफॉर्मल वर्कर्स लाइक कार्ट पुलर्स, कैजुअल वर्कर्स, पूरा दिन तो काम करते हैं लेकिन फिर भी बहुत कम पैसा कमा पाते हैं। डिस्गाइज्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है एग्रीकल्चर में? मोर पीपल देन नीडेड ऑन द फार्म, रिमूविंग सम पीपल डज नॉट रिड्यूस प्रोडक्शन। कहते हैं ज्यादा लोग जो हैं फार्म पे काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के रिमूव करने से कहते हैं प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रोडक्शन उतनी की उतनी ही है। इसको डिस्गाइज्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं एग्रीकल्चर में। सेमी रूरल एंड रूरल इंडस्ट्रीज में देखो क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, हनी कलेक्शन, ये सारा उसमें एग्जांपल आ जाती हैं। ये जॉब्स तो क्रिएट कर सकती हैं बट बिग सिटीज में, स्मॉल सिटीज में कुछ इसका इफेक्ट नहीं है। स्मॉल सिटीज में फिर भी लोग अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब अनएम्प्लॉयड नहीं होता। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि वो कम पैसे कमा रहे हैं, काम ज्यादा कर रहे हैं। यूथ एंड एजुकेशन फैक्ट देखो, 60% से ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन, है ना, 5 से 29 ईयर्स, 5 to 29 ईयर्स के लोग हैं 60% ऑफ द पॉपुलेशन में। और इसमें से 51% जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अटेंड कर पाते हैं। बाकियों का क्या? जिनकी एज 18 से कम है वो अभी भी घर पे हैं, दे आर अंडर एम्प्लॉयड। अब ये कुछ डेटा है, वर्कर्स इन डिफरेंट सेक्टर्स इन मिलियंस, यू कैन सी दैट। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बाद। मनरेगा देखो ये क्या है, ये 100 डेज ऑफ एज एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है इन अ ईयर। जैसे देखो किसी को काम नहीं मिल रहा, है ना, काम नहीं मिल रहा तो सरकार क्या करेगी, अगर एक साल में उसको कोई काम नहीं मिला वो उसको 100 डेज की वेजेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। 2025 में इसको विकसित भारत से रिप्लेस किया गया। किससे रिप्लेस किया गया? विकसित भारत, जी रैम जी 2025, ये कोई एक्ट था, उससे रिप्लेस किया गया। यू कैन बी आस्क्ड विद दिस क्वेश्चन। ओके, डन। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। इफ इज देयर एनी डाउट प्लीज आस्क, देन वी विल कंटिन्यू। डन। अब ये भी देखो, एक अच्छी सी है ये चीज, देखो, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रेडिट एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रेडिट में देखो, इरिगेशन होएगी, पानी वगैरह अच्छे से मिलेगा, है ना। फिर उससे क्या आएगा, अगर फसलें वगैरह अच्छे से, मतलब पानी वगैरह लग गया तो मतलब उनकी प्रॉपर सेलिंग एंड वो जो हार्वेस्टिंग करके सब कुछ होगा। क्रेडिट क्या होएगा? आप देखो, जो लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक रीजनेबल रेट पे, सीड्स और पंप सेट्स जो भी हैं, उससे क्या होएगा, सारा उनको सारा प्रोसेस हो जाएगा उनका। फिर एग्रो इंडस्ट्री में देखो क्या है, सारा जो कलेक्शन सेंटर्स रहे सेमी रूरल एरियाज वहां पे जा रहा है ना। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देखो किसके साथ रिलेटेड है, नीति आयोग एस्टिमेट्स नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएट। देखो, नीति आयोग ने एस्टिमेट किया है कि नियरली 20 लाख जॉब क्रिएट कर सकते हैं हम एजुकेशन सेक्टर में, सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में, ताकि 60% जो पॉपुलेशन है ना 5 से 29 ईयर्स के बीच में, मैंने अभी पीछे बताया आपको कितनी पॉपुलेशन है, तो अगर देखो पॉपुलेशन अगर 60% से ज्यादा 5 से 29 ईयर्स के बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स, तो उनको पढ़ाने के लिए टीचर भी तो चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में कहते हैं आज भी वैकेंसीज हैं जहां पे 20 लाख जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। समझ आया? हेल्थ केयर देखो, जितने ज्यादा डॉक्टर्स हायर करेंगे, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स फॉर रूरल एरियाज, उतना ही बेनिफिट होगा, उतनी ही फैसिलिटीज अच्छी होंगी, उतना ही हेल्थ केयर सेक्टर भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इंप्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, डन। चले आगे। ये देखो, राइट टू वर्क मनरेगा भी ये बताया मैंने आपको, है ना, सेम, ये सेम ही है आपका। ये देखो, अब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक कांता इज अ लेडी एंड कमल इज अ पर्सन, कमल इज अ मैन। एक वुमन और एक मैन, ये दोनों है। वुमन जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, कांता, एंड जो कमल है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब कैसे? देखो, एंटरप्राइज ये क्या चीज है, ये गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड, मतलब जहां पर भी ऑफिस है वहां पर काम करती है। फैक्ट्रीज एक्ट में पास हुए हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट, सारे एक्ट्स के ऊपर काम करता है ना। सिक्योरिटी एश्योर्ड वर्क, जितना काम मतलब मिला है मतलब उतना ही करना है, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं। ठीक है, कोई प्रॉपर इनकी फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर मिलती है, आवर्स फिक्स्ड आवर्स होते हैं। ओवर टाइम का भी पे किया जाता है, अगर ज्यादा काम करवाया रहता है तो उसका भी पे होता है। जैसे सपोज करो, अगर जैसे कोई एग्जाम हो रहा है कहीं पर, जैसे संडे को कोई एग्जाम हो रहा है, कोई टीचर है वहां पर उसकी ड्यूटी है, देन ही और शी विल बी गेटिंग पेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है, पेड लीव, अगर कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, उसको पेड लीव मिलेगी, उसके उसके पैसे नहीं कटेंगे।
नो सैलरी विल बी डिडक्टेड। प्रोविडेंट फंड, पीएफ, पीएफ क्या होता है? अगर पीएफ कटता है वो आपको जब आप रिटायर हो रहते हो उसके बाद आपको वो पैसे इशू हो रहते हैं, तो ताकि आपकी फ्यूचर जो आपका ओल्ड एज होएगी उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मेडिकल अलाउंस, जो अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो जाए, कोई मेडिकल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो उसमें भी आपको गवर्नमेंट ये अलाउंस प्रोवाइड करती है कि वो आपका खर्चा सारा उठाती है। उसके लिए आपको कार्ड वगैरह इशू रहता है वो आपको, ठीक है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पेंशन, सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब कमल के देखो, इसमें था गवर्नमेंट एक्ट, सारा कुछ है, इसमें कोई रूल्स फॉलो नहीं करते, ये कोई गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है। इसमें जॉब सिक्योरिटी है, इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। इसको कोई भी इसको अगले आधे घंटे में बोला जा सकता है भाई तू जा, तेरे से काम नहीं हो रहा, मैंने नया बंदा रख लिया, तेरे से ज्यादा काम कर सकता है, ठीक है। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है इसमें। आर्स में देखो, कोई फिक्स्ड आर्स नहीं है इसमें, कोई फिक्स्ड आर्स नहीं है, ना कोई इसमें कोई ओवर टाइम का पे नहीं मिलता। आप देखो ज्यादा काम करवा रहे हैं लेकिन फिर भी कोई ओवर टाइम का पे इसको नहीं मिल रहा। कोई भी हॉलीडेज पेड नहीं है इसमें, कोई सिक लीव नहीं है, कोई उसमें कुछ नहीं मिल रहा, और अर्निंग्स भी लो है देखो। इसमें पेड लीव, प्रोविडेंट फंड, सब कुछ आप समझ आ गया। ऑर्गेनाइज्ड क्या है और अनऑर्गेनाइज्ड क्या है? ऑर्गेनाइज्ड से ही आपको सारे पॉइंट्स पता लग जाने हैं, अनऑर्गेनाइज से आपको सारा अनऑर्गेनाइज्ड है। ये आपको मुझे लगता है लर्न भी हो गया ना साथ ही, है ना? क्लियर? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। इसमें देखो, प्रोटेक्टिंग द वल्नरेबल। अब वल्नरेबल क्या है? जो ग्रुप्स है ना हमारे, जैसे जो लोग जिनके पास आज भी मतलब फैसिलिटीज नहीं है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल रूरल एरियाज में कौन कौन से लोग आ जाते हैं? लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, ये आ जाते हैं। नीड क्या है? टाइमली डिलीवरी ऑफ द सीड्स, क्रेडिट, स्टोरेज एंड फैसिलिटीज। अर्बन एरियाज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कैजुअल वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, इनको क्या नीड चाहिए, मतलब क्या इनकी जरूरत है? गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे रॉ मटेरियल के लिए और मार्केटिंग आउटपुट के लिए, ठीक है। सोशली मार्जिनलाइज्ड में देखो क्या क्या है, इतना पता लग गया। स्केड्यूल्ड कास्ट, ST SC, बैकवर्ड कम्युनिटी सारी आ जाती हैं। अब देखो इनमें डुअल बर्डन है। डुअल बर्डन कैसे? कहते हैं इरेगुलर लो पेड वर्क, इनको बहुत सारा सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। प्रोटेक्शन इज नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, कहते इनको प्रोटेक्शन चाहिए एज फॉर द इकोनॉमिक एज वेल एज द सोशल डेवलपमेंट, दोनों चीजों के लिए। क्लियर हुआ? प्रोटेक्टिंग द वल्नरेबल, क्लियर टू यू? आगे करें, चलो। हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को प्रोटेक्ट कैसे करें, थोड़ा डिटेल में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। देखो ये वर्कर्स है कौन? लैंडलेस लेबरर्स वगैरह, ये मैंने आपको अभी बताया। 80% जो रूरल हाउस होल्ड हैं इंडिया में, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मल कैटेगरी में आते हैं, फार्मर कैटेगरी। अर्बन एरियाज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कैजुअल, वो सारा मैंने बता दिया। मेजर प्रॉब्लम्स क्या है? लो सैलरी है, एक्सप्लॉइट किया जाता है इनको, फेयर वेजेस नहीं दिए जाते, earnings are low and irregular, jobs are not secure, no other benefits, no leave, no insurance, no pension। ये अपनी जॉब्स कहते लॉस कर देते हैं। एंड मोस्टली कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में 1990 से क्या हो रहा है, 1990 के बाद से ही कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स लॉस हो रही हैं लोगों के द्वारा। आज भी उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है मजबूरी में, ठीक है। अब रूरल वर्कर्स के लिए कैसे प्रोटेक्शन, उनको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है? एडिक्वेट फैसिलिटीज। एडिक्वेट फैसिलिटीज मतलब उनको सप्लाई ऑफ सीड्स प्रॉपर मिले, फर्टिलाइजर सब कुछ मिले, क्रेडिट सपोर्ट, उनको लो इंटरेस्ट पे लोन्स मिले ताकि वो अपना खर्चा चला सके। मार्केटिंग सपोर्ट देखो क्या है, प्रॉपर मार्केटिंग, और उनको सेलिंग करने के लिए बेटर प्राइसेस पे वो उनको बेच सकें, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देखो क्या आ रहा है, इरिगेशन, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज फैसिलिटीज, इंक्रीज इनकम। अब देखो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या होगा? अगर बेटर रोड्स होंगी, बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होंगी, देखो इसकी इसको पता कैसे समझ सकते हैं हम? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे अगर रोड्स अच्छी नहीं होंगी, कोई ट्रक जा रहा है या कुछ भी सामान लेके जा रहा है, कुछ भी, अगर रोड ही उसकी मतलब थोड़ी डैमेज होएगी, कुछ वो धीरे धीरे जाएगा, है ना? तो थोड़ी स्पीड अप वो तभी करेगा जब रोड्स ठीक होएंगी उसकी, है ना? तो उससे एक्सीडेंट्स भी कम होते हैं और उससे टाइमली चीज पहुंच जाती है और लेट भी नहीं होती, और काफी चीजों का नुकसान होने से बच जाता है और सारी चीज स्मूथली चलती हैं। अर्बन वर्कर्स में देखो, ये सारा तो था आपका रूरल वर्कर्स का, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आता है। अर्बन वर्कर्स में बेसिकली नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज में हम बात करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग सपोर्ट में देखो क्या आएगा? सपोर्ट फॉर गेटिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग आउटपुट, सोशल प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, इंश्योरेंस, पेंशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज, प्रॉपर उनको पैसा, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी सब कुछ मिले, इंश्योर फेयर वेजेस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड जॉब इनसिक्योरिटीज।
प्रॉपर उनको पैसे पे किए जाएं, उनको एक्सप्लॉयटेशन उनको ना की जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और जॉब इनसिक्योरिटी ना हो। उनको जॉब इनसिक्योरिटी नहीं हमें देनी, जॉब सिक्योरिटी देनी है। दिस इज द वे हाउ टू प्रोटेक्ट दैट। प्रोटेक्शन जरूरी क्यों है? क्योंकि पता है लो अर्निंग्स है, नो जॉब सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट आर एसेंशियल फॉर देयर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब देखो जो गवर्नमेंट है ये क्या कर क्या रही है? ज्यादा सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी, है ना, फेयर वेजेस देगी, जॉब सिक्योरिटी देगी, सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम्स उनको देगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इंकरेज किया रहेगा, ठीक है। सबको सपोर्ट किया रहेगा विदाउट एनी एक्सप्लॉयटेशन, एंड उनको प्रोटेक्ट किया जा सकेगा फ्रॉम एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होएगी और जितनी ज्यादा फैसिलिटीज अच्छी होएंगी, उतनी ज्यादा जॉब्स और उतनी ज्यादा इनकम जनरेट होएगी, ठीक है। प्रोडक्शन ज्यादा, फैसिलिटीज ज्यादा, इनका मिक्सचर क्या देगा हमें? बेटर जॉब्स एंड हायर इनकम। अब मेनली हमने पढ़ा क्या इसमें? यही पढ़ा कि प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि प्रोटेक्शन और अगर हम सपोर्ट करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा है? वेजेस लो हैं, लो पेड वर्क है, कोई उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। उनको सपोर्ट करने के लिए हमें इकोनॉमिकली एंड सोशली दोनों तरीके से उनकी ग्रोथ भी करनी चाहिए और उनका डेवलपमेंट भी करना चाहिए हमारी कंट्री में। डन। अब ये पिक्चर में देखो क्या शो किया आपको, पिक्चर ये पेपर में आ सकती, बता सकते हैं कि क्या इस पिक्चर से पता लग रहा है आपको? आ सकता है ऐसे बेटा, आ सकता है। फैक्ट्रीज क्लोज डाउन, कितने सारे वर्कर्स जो हैं वो गुड्स अपने जो भी चीजें सेल कर रहे हैं कार्ट के ऊपर या कुछ अदर और जॉब कर रहे हैं, ठीक है। डन। चले आगे। अब प्राइवेट और पब्लिक का देखो ये क्या है एक डिफरेंस, इजी। एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज आर इन द हैंड्स ऑफ प्राइमरी इंडिविजुअल्स और कंपनीज। लेकिन पब्लिक में क्या होता है? सारा कुछ किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। प्राइवेट में प्राइवेटली ही सब कुछ ये किया रहता है। मोटिव क्या है इसका? प्रॉफिट्स अर्न करना। लेकिन इसमें क्या है? नॉट टू अर्न प्रॉफिट। कहते प्रॉफिट तो चलो अर्न हो ही जाता है गवर्नमेंट में, लेकिन मेनली इनका मोटिव होता है कि सिटीजन्स को सर्विसेज प्रोवाइड करे फंडेड थ्रू टैक्सेस, जो इनको फंड मिलते हैं उससे लोगों का प्रोवाइड करे सर्विसेज। आपको पता ही है आजकल क्या हो रहा है, मैं उसके बारे में बात तो नहीं करूंगा। चलो आगे देखो, एग्जांपल्स देखो इसमें प्राइवेट में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एग्जांपल्स लर्न कर लेना, पेपर में आ सकता है। टिस्को किसकी एग्जांपल है? प्राइवेट सेक्टर की के पब्लिक सेक्टर की? पब्लिक सेक्टर में आपको पता है रेलवेज आ रहा था और पोस्ट ऑफिस। डन। आगे चले। ये सारा उसका एक समरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक समरी टाइप है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चले आगे। डन। चलो। ठीक है, आगे चले। अब देखो इसमें इंडिस्पेंसिबल रोल ऑफ स्टेट, इसका क्या मतलब है? अब देखो, जो इकोनॉमी है हमारी, है ना, गवर्नमेंट उसको स्पेंड कर रही है मतलब कुछ भी, तो उसके 4 पिलर्स हैं, है ना। स्केल एंड कोस्ट, पिलर 1। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स ब्रिजेस डैम्स रिक्वायर्स प्राइवेट, requires massive capital beyond private capacity and must be available to everyone at low cost। क्या बोल रहा है? कहते हैं जैसे रोड है, ब्रिजेस है, डैम्स है ना, जस्ट ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए एक मैसिव कैपिटल की जरूरत होती है। कोई प्राइवेट कंपनी अकेले इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए सरकार खुद उसको पैसा लगाकर इसे जनता के लिए लो कॉस्ट पर उपलब्ध करवाती है। क्लियर हुआ? सेकंड पिलर में देखो क्या है, आप ध्यान से देखना। जो गवर्नमेंट है ना, वो क्या करती है? इट बाइज और जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए उनको लोअर रेट्स पर बिजली सप्लाई करती है ताकि वो बंद ना हो, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। अब फूड सिक्योरिटी में देखो पिलर 3। गवर्नमेंट ने देखो जैसे फार्मर से फेयर प्राइस पे वीट और राइस खरीदे, फिर उसे जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं जो नहीं मतलब खरीद सकते अपने पैसों से, दे आर फाइनेंशियली वीक, बिलोंग टू वीकर सेक्शंस, उनको राशन पहुंचाना, है ना।
सस्ते रेटों पे, उनको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी में आ गया ये सारा, ठीक है। अब पिलर 4 देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या आ गया, प्राइवेट सेक्टर्स का ध्यान सिर्फ मोटिव पर नहीं होता, प्रॉफिट पर नहीं होता। कहते हैं ये मोर्टेलिटी रेट्स विदाउट गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ह्यूमन डेवलपमेंट इज इम्पॉसिबल। क्या बोल रहा है, कहते प्राइवेट सेक्टर्स का ध्यान सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं होता, ये कहते सामाजिक मानकों जैसे सोशल मेट्रिक्स हम बोल सकते हैं, जैसे कहते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। हम्म, पढ़ा है ना आपने। बताओ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। बताओ बताओ। यस, चैट बॉक्स में लिख दो। नम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, इधर देखो जरा। पेन वर्क नहीं कर रहा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स, जो छोटा बच्चा मतलब जैसे 1 साल के अंदर अंदर उसको इन्फेंट बोलते हैं, अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1,000 लाइव बर्थ्स इन स्पेसिफिक ईयर। समझ आया। पढ़ा है ना आपने, डेवलपमेंट चैप्टर में डेफिनेशन करते हो आप, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट HDI, वो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट बताया था, है ना। तो अब कर क्या रहे हैं ये देखो, मतलब कि जैसे इस पे जो है, प्राइवेट सेक्टर्स विल नॉट फोकसिंग ऑन फिक्सिंग क्रिटिकल सोशल मेट्रिक्स। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उड़ीसा में 36 है, मध्य प्रदेश में 43 है, विदाउट गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, है ना, उसके बिना। इसलिए सरकारी जैसे होता है ना, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज है, फंड वाले, जैसे फंड जहां पर गवर्नमेंट फंड आ रहा है जैसे एजुकेशन में हेल्थ केयर में, है ना, उसमें कोई ह्यूमन डेवलपमेंट इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, ये बोल रहा है वो, ठीक है। और उस पर वो फोकस नहीं करता। डन। चलो आगे ये देखो अब, नेक्स्ट, थिंक ऑलमोस्ट डन ही है। ये देखो अब, ये एक समरी है, क्या क्या हमने किया देख लो क्विकली, फटाफट देखेंगे। प्राइमरी सेक्टर यूजेस नेचुरल रिसोर्स, प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल, है ना, produces raw materials, example farming, fishing, provides food and basic needs. सेकेंडरी सेक्टर वो सारा इंडस्ट्री वाला आ गया। टर्शरी सेक्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, हायर इनकम एंड नॉलेज, है ना। जीडीपी का आपको बताया, टोटल वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इन अ ईयर, है ना। मेजर द साइज ऑफ द इकोनॉमी, की रूल कैसे याद रखना है, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही आप लर्न करोगे, उसका लर्न मतलब कि याद रखोगे कि उसको ही लिखना है, पिछले वाले को नहीं काउंट करना, क्योंकि उसका डबल काउंटिंग ना हो जाए। आपको एग्जांपल देके बोल सकता है रॉ मटेरियल इतने में खरीदा, इतने में खरीदा, फाइनल गुड जीडीपी निकालो, कैसे करोगे, मतलब कैसे उसको कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का डिफरेंस। प्राइमरी एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्शरी इन सर्विसेज। मेन एक्टिविटी क्या है, नेचुरली जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज करता है, ये रॉ मटेरियल को प्रोसेस करता है। सेकेंडरी टर्शरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एग्जांपल्स क्या आ रहेंगी, फार्मिंग, माइनिंग। सेकेंडरी में फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, टर्शरी में प्रोवाइड सर्विसेज। शेयर इन जीडीपी क्या है, प्राइमरी का डिक्रीज कर रहा है, सेकेंडरी का स्टेबल है, टर्शरी का इंक्रीज कर रहा है। जॉब्स में देखो, प्राइमरी रूरल एरियाज में ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी दोनों में कर रहा है, एंड टर्शरी मोर इन द अर्बन एरियाज। इनकम लेवल प्राइमरी में लो है, सेकेंडरी में मीडियम और टर्शरी में हाई। डन। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ये बताया था, मोर प्रोडक्शन, मोर जॉब्स एंड हायर इनकम। पब्लिक एंड प्राइवेट का भी बता दिया बेटा, ठीक है। वाई ऑल आर सेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, वो आ सकता है पेपर में। रीजंस फॉर अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट के क्या रीजंस है, लो इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज ग्रोथ, मोर वर्कर्स देन जॉब, सीजनल वर्क इन फार्मिंग, स्मॉल एंड इनफॉर्मल बिजनेसेस, लो एजुकेशन, लो स्किल्स एंड एजुकेशन, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कहते हैं सिर्फ शिफ्ट नहीं हुई, हैज नॉट शिफ्टेड एज मच एज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में इतना शिफ्ट नहीं हुई एम्प्लॉयमेंट। टर्शरी में देखो अभी भी कम ही है, अभी भी एम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा टर्शरी में है, प्राइमरी में सॉरी, ठीक है, टर्शरी में कम है। और शेयर इन जीवीए परसेंट, प्राइमरी ऊपर है, टर्शरी नीचे है। पहले टर्शरी ऊपर था,
एंड प्राइमरी नीचे था, नाउ प्राइमरी। बस ये याद रख लो कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो अब नीचे है जीवीए परसेंट के रेट में। टर्शरी सेक्टर ने अपने आप को इंक्रीज किया है जीवीए परसेंट में। और एम्प्लॉयमेंट में किसने अपने आप को इंक्रीज किया है? प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर तो पहले ही इंक्रीज था, उसका कांस्टेंट ही रहा है आपका। मेनली जीवीए परसेंट में कौन इंक्रीज हुआ है? टर्शरी सेक्टर। डन। ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता देना, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच क्लास। हैव अ नाइस डे।